Good evening, everyone. Am I audible? Camera on करो. We will start within 2 minutes. How was yesterday's test? निशिल बहुत जोर से हंस मैम रहा है. कितना हार्ड। बहुत हार्ड था. पर वो तुम लोगों ने देखा मतलब उधर मैम सब थोड़ा ईयर. थोड़ा सा। हाँ, पर तुम लोगों ने देखा वहाँ पे सारे ईयर्स लिखे हुए थे. नीट, JEE. हाँ हाँ, हाँ फिर. 1998 हाँ. 2000। 2016 के कुछ क्वेश्चन थे, 2017 के कुछ थे. तो वो एकदम नीट के पेपर के ही आए हुए क्वेश्चन थे. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेवल ऑफ नीट. मतलब सिर्फ ऐसे किताबी चीजें पढ़ के तुम लोग का होगा नहीं सॉल्व. थोड़ा ज्यादा मेहनत करो. अभी नेक्स्ट टेस्ट में लगाऊंगी केमिकल बॉन्डिंग पे. ठीक है. अभी नहीं, अभी थोड़ा. ये संडे दे सकते हैं ना केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट बच्चों? नहीं. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट वीक. ऐसे फेसेस मत बनाओ, नेक्स्ट वीक दे दो. नेक्स्ट संडे. ठीक है. पर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना चालू करो. आई थिंक आ गए सब लोग ना. ओके. फर्स्ट थिंग, I would like to appreciate those who got the punishment, and it is really really good कि सभी ने अपना अपना punishment send किया मुझे, including Ashish also. So very good, really appreciable. अपूर्व, आशीष, उर्मिल, सभी ने अपना अपना पनिशमेंट मुझे 5 times लिख के पेपर सेंड किया है सबने. सो इट्स रियली रियली गुड. और सबसे अच्छा जो लिखा है वो अपूर्वा ने लिखा है, एकदम सिस्टमैटिकली एंड वेरी नाइसली. वेरी गुड अपूर्वा. Okay, so should I start now? I think all have joined. Please camera on करिए सब लोग. गोम्स, तूने मेरे को भेजा पनिशमेंट? गोम्स, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है कि इसने भेजा है मेरे को. Yes, गोम्स, have you sent me your punishment 5 times? लास्ट टाइम पूछूंगी मैं, वरना तुझे भी रिमूव करती हूँ मैं मीटिंग से. ओके. सो बाय टुडे इवनिंग यू हैव टू सेंड मी. ठीक है. एक बार बाकी है उसका लिखने का. ओके, नो इश्यूज. चलो. So last time we have seen nucleophilic substitution reaction of alkyl halide. In that you have seen total, I guess, 8 reactions in which you have treated your Rx. तो मैं सिर्फ एक ही बार लिखती हूँ. Rx you have treated with NaOH, then you have treated with KOH, then you have treated with sodium alkoxide, then you have also did the reaction with silver carboxylate, then alcoholic ammonia, KCN, silver cyanide. These two are in the alcoholic medium. Then potassium nitrite, KNO2, and then silver nitrite, AgNO2. Correct? So all these reactions we have done last time. I hope it is very, very clear to you all. When your Rx is treated with this, it will form alcohol. आपको पता है नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि which one of the following is used to convert alkyl halide into the alcohol. ठीक है. और ये दोनों जो था ना, ये aqueous था. जब आप alcoholic यूज करते हो तो it will give you alkene, but when you are going to use aqueous you will get your alcohol. ठीक है. और इसमें दोनों ऑप्शंस थे and that is what 4 marks. So alkyl halide, which one of the following will be treated with the alkyl halide to get alcohol? ठीक है. तो यहाँ पे NaX निकलेगा बाहर, NaH, so it will form ROH plus NaX. यहाँ पे क्या बनाएगा वो, it will form ROH plus KX. ठीक है. If you are going to treat your alkyl halide
with sodium ethoxide, suppose ये R dash है, तो ROR dash, it will give you ether. If your alkyl halide is treated with this, so it will form RC double bond OR dash, means ester. When your alkyl halide is treated with ammonia, okay, ammonia is also alcoholic, so it will give you a formation of primary amine and HX. ये सब आपको याद होगा, शायद से लास्ट टाइम मैंने बताया था. ठीक है, RX when treated with KCN, it will form alkyl cyanide plus KX. ठीक है, बट अगर आप सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट करोगे तो it will give you a formation of alkyl isocyanide. See the difference? Here the bond of R and C is very strong. Here the bond of N and C, R and R and N is very strong, and that is why it is giving you isocyanide. When it is treated with KNO2, it will form alkyl nitrite. ठीक है, and when it is treated with silver nitrate, it will give you nitroalkane. ये यहाँ पर नाइट्राइट है और ये यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, दोनों ग्रुप्स में फर्क है. ठीक है, so this is the reaction which we have done last time. Am I right? Yes or no? And you have written also. ठीक है, अभी इसके ऊपर ही I am going to give you some questions. You have to complete those reactions. Ready, everybody? Yes, Okay, ma'am. along with your IUPAC names and everything. ठीक है? Any questions so far? No, ma'am. Okay. क्लियर है मैम. Okay, चलो. So अभी मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग सॉल्व करना. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के भी IUPAC नेम लिखने हैं. ठीक है? Complete the following reactions. Yes. आपने इसके पहले कुछ लिखने के लिए दिया है क्योंकि मेरा नहीं नेट चल रहा था ना, तो नहीं 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 दिया. डोंट वरी, लास्ट टाइम जो दिया था वही है. CH3Cl plus aqueous NaOH. What is your product? This is first reaction. Second one is CH3 CH2 Br plus CH3 C double bond O OAG. Complete the reaction. Third one is CH3 Br plus ammonia, which is in the alcoholic medium. Complete the reaction. Fourth one, I will write down here, CH3 CH2 Cl plus KCN. इसका ना मैं एक आपको बाद में ट्रिक बताऊंगी कि इसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, थोड़ी देर बाद I will tell you that special difference of this. CH3 CH2 CH2 Br plus AgCN. What is the reaction? Of course, this is in the alcoholic medium. This is also in the alcoholic medium. Then the sixth one is CH3 CH2 CH2 Cl plus you are going to treat it with silver nitrite, silver nitrite. तो आपका क्या प्रोडक्ट आएगा. ठीक है, these are the reactions which are supposed to complete now. And one more, yes, one more I will write down. CH3 Br plus sodium methoxide. चलो, how much time you need? 7 reactions, exactly same. You refer your main reactions and complete this. 7 minutes. 10 minutes are okay, right? तो अभी मैम आपने जो दिए उसको रिफर कर सकते हैं ना. Yes, 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 definitely. जिसका IUPAC नेम नहीं आता है वो मत लिखो, पर जिसका आता है उसका लिखो. ठीक है, and you have to write down all these names also. You can refer those reactions which I have given already, and for this you will get 7 minutes. अभी 5:42 हो रहा है. 5:52. चलो 10 मिनट दिया तुम लोग को. 5:52 को आपका सब रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए. And please write down done in the chat box if you have done with the writing part. जो नहीं आता है वो छोड़ दो, डोंट वरी, बट एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट दिस. ये एकदम पक्का करना है. ठीक है, एकदम परफेक्ट.
कल के टेस्ट में टाइम कम पड़ा था क्या तुम लोग को? 1 घंटा? यस मिस। अच्छा। एक ही घंटा था ना टाइम। क्या 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 हुआ एक साक्षी? घंटा नहीं था। मैम कितने टाइम का था डिवेट? 1 hour ना, 7:10 को चालू हुआ ना। हाँ मैम कम था टाइम। मैम क्या पेपर था वो? हाँ एक्चुअली कैसा रहता है, 60 क्वेश्चंस दिया था ना, तो 60 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स ही मिलता है, 1 minute फॉर 1 क्वेश्चन, समझे? ठीक है चलो, नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, जब तक आप लोग एकदम पक्के नहीं हो जाते। सो नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू 1.5 hours फॉर 60 क्वेश्चंस, ठीक है? देखते हैं अभी सबको क्या मार्क्स मिला है, लेट्स सी। But I'm very happy that you all are taking test and everything very seriously. Yeah, I'm so happy. जब सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली आई विल गिव यू ऐसे चॉकलेट्स, चार आने वाला सबको। अदिति ने भी बहुत अच्छा पेपर लिखा था, वो सोल्यूशन चैप्टर का, वेरी गुड। और जैन ब्रदर एंड सिस्टर तो बेस्ट है ही, है ना हिमल? तो फटाफट लिखो बच्चों, कंप्लीट योर रिएक्शंस एंड राइट डाउन डन इन द चैट बॉक्स इफ यू आर डन विद द राइटिंग। कुछ नहीं आएगा तो छोड़ दो, टेंशन मत लो, आई विल टीच यू। Okay, Aditi is done with all the answers. Chalo, what about others? This is why I'm making you to practice these things, ताकि आप लोग को पढ़ने के टाइम पर एकदम फटाफट समझ में आए। फिर ऐसे नहीं लगना चाहिए क्या पढ़ा था, क्या था ये, ऐसे नहीं होना चाहिए। Okay, Hinal is also done.
Okay, I think all have done. So I'm writing here, this is your chloromethane and the product will be CH3OH plus NaCl. See, I'm not emphasizing more on byproduct. This is called as methanol. Okay, here it will give you CH3, C double bond O, O, CH2, CH3. This is called as ethyl ethanoate. Okay, this is called as ethyl ethanoate. Okay, then CH3, NH2 plus HBr. Correct? So this is called as मीथानमाइन. क्या बोलते हैं इसको? मीथेन. मीथेन का स्पेलिंग क्या है? METHANE लिखते हैं ना. A is replaced by amine, methanamine. ठीक है, here you will get CH3, CH2, CN plus KCl. अभी यहाँ पर मजा देखो हाँ बच्चों, ये वाला कार्बन will count for IUPAC. This is the special case only in the case of cyanide. मैंने आपको क्या बोला था? क्लोरीन का C काउंट नहीं करते हैं ना? Yes or no? क्लोरीन का C you are not going to count for your IUPAC. लेकिन cyanide का C you are supposed to count for your IUPAC. अभी देखो हाँ, मैंने रिएक्टेंट लिया है 2 कार्बन वाला, प्रोडक्ट मिला है 3 कार्बन वाला. तो एग्जाम में कैसे आता है पता है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आया था CH3, CH2, 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 CN. To make this product, what is the starting material you are going to use? तो इससे एक कार्बन एटम कम रहेगा ना. CH3, CH2, CH2, CH2 लिया था, उससे मुझे साइनाइड वाला मिला. Getting my point? This is called as 1, 2, 3. So it is called as propyl cyanide. Propyl cyanide. ठीक है, or it is also called as propane nitrile. Cyanides are also called as nitrile, so it is also called as propane nitrile. Nitrile का spelling is this one, LE, nitrile. Okay, is it very clear? Here you have taken 2 carbon atoms, but you are going to get the product with 1 carbon atom more. ठीक है, ये हो जाएगा आपका isothiocyanide, isocyanide. So CH3, CH2, CH2, NC. This is called as propyl isocyanide. ये वाला कार्बन नहीं काउंट होगा, सिर्फ ये वाला काउंट होगा. तो this is called as propyl isocyanide. Isocyanide. Okay. Then here you will get silver nitrite के साथ you will get CH3, CH2, CH2, NO2. है ना? This is called as nitropropane. नाइट्रोप्रोपेन. अभी 1 नाइट्रोप्रोपेन भी बोल सकते हैं ना. इसके दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो 1 नाइट्रोप्रोपेन एंड दूसरा CH3CH NO2CH3. yes or no? So 2 nitropropane is also possible. Getting my point? Yes or no? Understood? थोड़ा दिमाग चलाने का कि मैंने 3 कार्बन वाला दिया है, तो नाइट्रो कैन गो टू फर्स्ट पोजीशन ऑल्सो एंड नाइट्रो कैन गो टू सेकेंड पोजीशन ऑल्सो. बट ये वाला ही आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा. क्यों? क्योंकि आपका Cl इधर ही था. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज CH3OCH3, इसका प्रोडक्ट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज methoxymethan. ओके, इट इज कॉल्ड एज methoxymethan. समझ गया बच्चों? क्योंकि आपका यहाँ पे मीथेन है and this group is called as methoxy, so it is called as methoxymethane. Understood everyone? I hope मैम it is फिफ्थ very. का यूपीएससी बताइए ना. फिफ्थ वाला ये देख, ये वाला Yes, ma'am. AgCN वाला. यस मैम. ओके, ये देख CH3, CH2, CH2. अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? NC, राइट? सो अभी ये वाला कार्बन नहीं काउंट करने का. जब ये यहाँ पे लगाएगा ना कार्बन, ये वाला काउंट करने का, ये वाला नहीं काउंट करना है. दिस इज 1, 2, 3. सो यू विल कॉल इट एज प्रोपेन isocyanide. ठीक है, you have to write down all the name, complete name, and it is isocyanide. Understood? यस Is मैम. it clear? हाँ
हाँ बोलो प्रांजल, बोलो। लास्ट वाला। लास्ट वाला ये, यहाँ पे देखो ये NaBr को बाहर निकालो तो CH3OCH3, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। और ये हो गया आपका मीथेन, सो द नेम इज मिथॉक्सी मीथेन। ओके, अभी ये जो देखो मैं बताती हूँ, ये ईस्टर का IUPAC, अमाइन का IUPAC और ईथर का IUPAC एक प्रॉपर चैप्टर ही है, तो वो टाइम पर आप लोग को बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। खाली ये आपने प्रोडक्ट ठीक से लिखा है क्या वो देखो। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट सो फार? किसको नहीं समझा? एनी आंसर, एनीथिंग? क्लियर है मैम। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, दोज वर न्यू एडमिशन? ओके, ठीक है। गौरी, नीति, ओमकार, प्रणव, राज, दोनों भी राज, सानिका, संकल्प, सोहम, सिद्धेश, ओके, ऑल आर क्लियर विद दिस? मैम फोर्थ में कार्बन काउंट होगा। यस, ये जो साइनाइड वाला कार्बन है ना, दिस कार्बन यू आर गोइंग टू काउंट ओवर हियर, समझा? ये है स्पेशल IUPAC फॉर साइनाइड। We are not going to count the chlorine का C, but you are going to count the cyanide का C for IUPAC। एक जगह लिख के रखो चाहिए तो, ठीक है। ये ध्यान में रखना, मैंने बोला ना क्वेश्चन कैसे आता है, टू प्रिपेयर दिस एज अ प्रोडक्ट विच अल्काइल हैलाइड यू हैव यूज्ड। तो आप क्या बोलोगे, अभी ये है 1 2 3 4 5 पेंटेन नाइट्रल बनाया, तो मैंने क्या यूज किया रहेगा, ब्यूटाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल हैलाइड, समझा? पेंटेन बनाने के लिए ब्यूटेन यूज करते हैं, ब्यूटेन बनाने के लिए प्रोपेन यूज करेंगे, अंडरस्टूड? और प्रोपेन बनाने के लिए यू आर गोइंग टू यूज इथेन, एक कार्बन एटम कम वाला अल्काइल हैलाइड यू आर गोइंग टू यूज। ये नीट में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? एनी अदर डाउट्स, एनीथिंग? नो मैम। ओके, शुड आई प्रोसीड नाउ? अभी मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चीज सिखाने वाले, विच इज कॉल्ड एज SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। एक मिनट, मेरी बुक खत्म हो गई, मैं दूसरी बुक लगाती हूँ, जस्ट अ सेकंड। तुम लोग जितनी बुक्स में लिखते हो ना, उतना मेरा भी बुक खत्म हो जाता है, और सब 4-5 क्लासेस में तो मेरा 5-5 बुक हो जाता है एक ही चैप्टर का। सोच रही हूँ बेचू वो बुक, है ना, नोट्स लिख के अच्छा खासा कमाई हो जाएगा, है ना? साक्षी देख कहाँ ही बोल रही है ना, एवरी टाइम आई एम राइटिंग 5 टाइम्स फॉर योर क्लास, फॉर अदर क्लासेस। चलो, now we will study here a very very interesting part। अभी put your pens down, just sit straight and pay attention, क्योंकि इसके ऊपर आपको इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, इवन इन योर 12th स्टैंडर्ड, इवन इन योर 11th स्टैंडर्ड, ठीक? सॉरी, नॉट 11th स्टैंडर्ड, इन योर एंट्रेंस ऑल्सो, ठीक है? सो वी विल स्टडी हियर बच्चों SN मैकेनिज्म, ठीक है? अब आप लिखा देखो कैसे, कैपिटल S और उसके बेस पे कैपिटल N। S stands for substitution, N stands for न्यूक्लियोफाइल। समझ आ गया? अभी न्यूक्लियोफाइल सभी को पता है, योर OH माइनस जो भी नेगेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट? Now here in SN mechanism, what is happening here? We are saying that my CX bond is having electrophilic center, ठीक है? It is having your electrophilic center, क्योंकि होगा क्या, when I am going to remove this carbon will get positive charge, so it is becoming electrophilic center। और इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं, if you remember, it is called as कार्बोकटायन। Do you remember? हमने किया था होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिशन में, so it is called as कार्बोकटायन, ठीक है? अब there are 3 types of carbocation। This is called as tertiary carbocation, this is called as secondary carbocation, and this is called as primary carbocation। Tertiary is more stable than secondary, secondary is more stable than primary। इतना clear हो गया? So in SN mechanism, substitution nucleophilic mechanism, जो carbocation plays a very important role, और ये जो आपका bond है, it undergoes into the heterolytic fission, it will break up this
and forms carbocation. ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे. Now this SN mechanism is further classified into two categories. First is called as SN1 mechanism and second one is called SN1 mechanism and second one is called as SN2 mechanism. ठीक है, SN1 mechanism, SN2 mechanism. वापस से मैं बोलती हूँ, ध्यान से सुनो. What I said, we are going to study here SN mechanism. S stands for substitution, N stands for nucleophilic. In your CX bond means in your alkyl halide, this carbon is acting as electrophilic center because when it undergoes into the heterolytic fission, ये निकल जाएगा बाहर, your carbon will get the positive charge. So here this carbon is called as carbocations. There are three carbocations which you have done in your 11th standard also. Tertiary carbocation, secondary carbocation and primary carbocation. So the most stable is tertiary, then secondary and then primary. Now this SN mechanism is further classified into SN1 and SN2. अभी SN1 क्या होता है? It is called as substitution, nucleophilic, unimolecular. मतलब उसमें एक ही मॉलिक्यूल आपका इंपॉर्टेंट है. वन स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर. तो इसका नाम क्या आएगा? इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक. टू का मतलब क्या है? बायमोलिकुलर. इतना क्लियर? इट इज यूनिमोलिकुलर एंड दिस इज बायमोलिकुलर. SN1 एंड SN2. SN1 का फुल फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, substitution nucleophilic bimolecular, right? Next, यहाँ पर you are going to give more preference to tertiary alkyl halide. ठीक है, फिर वो सेकेंडरी को भाव देगा और एकदम लास्ट में वो प्राइमरी को देगा. इस केस में it is giving you first preference to primary, then secondary and then tertiary. समझ आ रहा है? Now SN1 लिखा है, SN1, so it takes place in the 2 steps. और ये 2 लिखा है ना, it takes place in 1 step. यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे if you are having tertiary, if you are having secondary, if you are having primary, who will get the first preference? Tertiary, secondary and primary. यहाँ पे उल्टा, primary, secondary and tertiary. इसका रीजन मैं बताऊंगी कि why this is preferable over here. Okay, this takes place in the 2 different steps and this takes place only in the 1 step. ठीक है, अभी यहाँ तक का रहने दो, आगे मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगी जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, so first of all we will study here SN1 mechanism. Just a minute. Now we will study. Do not write anything, just pay attention. मैं क्या बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही सुनो. SN1 mechanism. So first of all, in the first point, you will say that it is substitution nucleophilic and unimolecular mechanism. ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला? टर्जरी को प्रेफरेंस देना है. So what I am writing here, just see this very very carefully. CH3, 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 Br. I am going to use over here KOH or NaOH, anything. ठीक है, ये KBr बाहर निकल जाएगा and your product will be CH3, C, CH3, CH3. ये हो गया हमारा OH प्लस KBr. इतना समझा? ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन. Br को निकाल के उसकी जगह पर क्या डाल दिया मैंने? OH डाल दिया. ठीक है, सो आई विल से दैट एक होता है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन is directly proportional to the concentration of only one reactant. इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर. ये आप वीक ले लो या स्ट्रॉन्ग ले लो, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है.
My rate of the reaction depends only on the concentration of this part. तो देखो आप बच्चों, मैं इसको कैसे लिख रही हूँ, CH3 thrice CBr, बोलो बराबर है कि नहीं, सेम है ना ये, 1 2 3 3 CBr, is it right? So I will write down that is equals to K into CH3 thrice CBr. समझा? यहाँ तक समझा? ये बोलो पहले yes or no. Just see this. Substitution, nucleophilic, unimolecular. We are using over here tertiary alkyl halide and KOH. You are going to remove this KBr. Nucleophilic substitution you are going to do. And what is happening here? You will get this product. So rate of the reaction is directly proportional only on this molecule. That is why it is called as unimolecular. तो मैं ये बोलूं कि अगर ये मैंने weak भी लिया तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे, राइट? अभी ये यहाँ पर यूनिमोलिकुलर हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर अगर कुछ नहीं हुआ, हम जब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तब आप बहुत डिटेल में उसको जान पाओगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि यहाँ पर सिर्फ 1 होता है, इतना क्लियर? अब हम इसका क्या पढ़ेंगे बच्चों? वी विल स्टडी नाउ इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। अभी यहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा। वी आर गोइंग टू स्टडी हियर स्टीरियोकेमिस्ट्री बिहाइंड दिस, ठीक है, और स्टीरियोकेमिकल मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, करेक्ट? अब मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट सी दिस, आई हैव कार्बन, आई एम राइटिंग 1 मिथाइल ग्रुप हियर, ठीक है, ये मेरा दूसरा मिथाइल ग्रुप, ये मेरा तीसरा मिथाइल ग्रुप, एंड my Br is here. Is this the same compound? I am writing these 2 lines indicates that these 2 bonds are on the plane, this is below the plane, and this is above the plane. Is it very clear बच्चों? hello Yes, ma'am. ओके, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना बच्चों, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, मैंने क्या बोला था, SN1 कितने स्टेप्स में होता है, 2 स्टेप्स में, राइट? सो होगा क्या, ये Br को पहले वो बाहर निकाल देगा, स्टेप नंबर 1। तो जैसे ही वो बाहर गया, इट इज अ स्लो स्टेप, करेक्ट, इट इज अ वेरी स्लो स्टेप। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट विल फॉर्म CH3, देन ये मेरा CH3 यहाँ पे एकदम सही सलामत है, एंड देन आई एम राइटिंग हियर अगेन CH3, Br को बाहर निकाल दिया तो कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, और मेरा Br आ गया बाहर, ये बन गया कार्बोकैटायन, एंड विच कार्बोकैटायन इट हैज फॉर्म्ड, टर्शरी कार्बोकैटायन, समझा, विच इज मोस्ट स्टेबल, समझा? अभी अगर मैंने प्राइमरी लिया होता बच्चों, अभी उसकी भी बात करते हैं, CH3Br लिया मैंने, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू यूज ओवर हियर KOH, ये निकल गया, तो अभी मेरे पास ये जो Br मैं निकालती तो मुझे ये जो मिलता, ये क्या मोस्ट स्टेबल था कि ये ज्यादा मोस्ट स्टेबल है? टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल देन प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटायन से, राइट? दैट इज व्हाई वी आर गिविंग प्रेफरेंस हियर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अभी समझा व्हाई वी आर टेकिंग योर टर्शरी अल्काइल हैलाइड? क्योंकि मुझे बनाना है कार्बोकैटायन, तो मैं क्या देखूंगी, अच्छा माल देखूंगी ना। तो व्हाट इज माय अच्छा माल ओवर हियर, इट इज माय टर्शरी अल्काइल हैलाइड which will give me tertiary carbocation. This is a step number 1. Step number 2. अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, देखो एकदम ध्यान से, ये मेरा है कंपाउंड which is called as carbocation. This carbocation is most unstable, ठीक है? अब यहाँ पर मैं न्यूक्लियोफाइल को अटैक करूंगी। विच वन इज माय न्यूक्लियोफाइल हियर बच्चों, OH। अब ये न्यूक्लियोफाइल है ना बच्चों, दोनों साइड से अटैक करेगा, दिस इज कॉल्ड एज बैक साइड अटैक, पीछे से भी धक्का मारेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रंट साइड अटैक। आ रही है बात समझ में? दिस इज कॉल्ड एज बैक साइड अटैक, दिस इज योर बैक साइड अटैक, इसको अटैक बोलते हैं, ठीक है, एंड दिस इज योर फ्रंट साइड अटैक। अभी तो इसके मेरे को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे ना, एक प्रोडक्ट कैसा आएगा देखो ध्यान से, आई एम राइटिंग हियर CH3, फिर यहाँ पर मेरा एक OH अटैच्ड हो गया, फिर यहाँ पर मेरा एक CH3 है, और यहाँ पर मेरा एक CH3, एक OH पीछे की तरफ चला गया क्योंकि बैक साइड अटैक था, और यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, CH3, यहाँ पे मेरा एक CH3 है,
another CH3 is here, और मेरा OH अभी किधर ज्वाइंट हो गया, इधर पे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? बैक साइड अटैक एंड फ्रंट साइड अटैक। अब देखो, हाँ, मेरा Br किधर था, राइट साइड पे, तो राइट साइड जैसा वाला प्रोडक्ट ये है, क्योंकि Br को राइट से निकाला और OH भी राइट में ऐड किया, तो दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन। मतलब मेरा हाथ देखो, अंगूठा ऐसा है ना, मेरा प्रोडक्ट ऐसा था, दिस इज योर Br, तो मैंने मेरा जो प्रोडक्ट लाया है सब्स्टिट्यूट करके वो सेम जगह पर सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो इट इज कॉल्ड एज रिटेंशन। बट इस केस में क्या हो गया बच्चों, माई हैंड इज नॉट लाइक दिस, माई हैंड इज लाइक दिस नाउ, इन्वर्जन हो गया ना, so this is called as inversion of configuration। समझा? तो ये आता है आपको 50% और ये आता है आपको 50%। That means in SN1 mechanism you are going to get 50% retention plus 50% inversion, and these together is called as racemic mixture. Yes or no? These together are called as racemic mixture. अभी समझा mechanism सबको? Once again I'm just repeating this. SN1 mechanism, SN1 mechanism मतलब substitution nucleophilic unimolecular mechanism, right? Here we are going to give the preference to tertiary alkyl halide, then secondary, and then primary. Why tertiary? Because I want to make over here a carbocation, तो मैं क्या देखूंगी कि मुझे tertiary carbocation मिले, so I'm going to use over here tertiary ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, टर्जरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और 2 सॉरी 2 क्या, 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलेगा टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हो गया। Rate of the reaction depends only on the concentration of one substrate. That is why it is called as unimolecular reaction. What is the stereochemistry behind this? The stereochemistry is we are taking here tertiary alkyl halide. In the first step, formation of carbocation takes place, right? So when the formation of carbocation takes place, this will go, bond will break, you will form tertiary carbocation. Second step is attack of nucleophile. So nucleophile will attack from both the sides, that is from the back side as well as from the front side. When you're going to attack from the back side, आपको मिलेगा inversion of configuration. जब आप आगे से अटैक करोगे तो ये बिल्कुल इधर था ना, Br इधर था, OH भी इधर ऐड हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट? 50-50% मिलता है। That is why I can conclude over here that SN1 mechanism takes place in 2 steps, and here it depends upon 50-50%, so it is called as racemic mixture. पहले बोलो इतना क्लियर है या नहीं? हाँ Any मिस क्लियर है। doubts? पक्का? ठीक है, अब देखो, अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये बताती हूँ उसका कॉन्सेप्ट। ये है SN, अच्छा ठीक है, दोनों का जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग है वो बाद में बताएंगे। अभी SN1 समझ आ गया। SN1 SN2 में दोनों साथ में लिखती हूँ, तुम लोग बाद में आराम से लिखो। नाउ वी विल स्टडी हियर SN2 मैकेनिज्म। बताओ इसका नाम क्या रहेगा? SN2 मतलब substitution nucleophilic bimolecular. Yes or no? So I will write on first point its full form, that is substitution nucleophilic bimolecular. Bi means 2. ठीक है? Here you are going to give the preference to primary, then secondary and then tertiary. क्योंकि ये कितने स्टेप में होता है? Only in one step. ठीक है? अब क्या होगा देखो, I am writing here CH3Br plus KOH gives you CH3OH plus KBr. ठीक है? मैं लिखूंगी rate of reaction is directly proportional on these two. दोनों पे डिपेंड करेगा, तो CH3Br also and KOH also. Just to remove the proportionality sign, I am writing over here K, CH3Br and KOH
अभी यहाँ पर दिस मतलब 1, दिस मीन्स 2, तो 1 + 1 2 हो गया, दैट इज कॉल्ड एज बायमोलिकुलर। क्लियर? इतना क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, अभी इसका हम क्या देखेंगे पता है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। अब देखो ध्यान से, मेरे पास है CH3, तो मेरा एक H यहाँ है, दूसरा H मेरा यहाँ है, और सपोज तीसरा H मेरा यहाँ है। ठीक है, इसके बिल्कुल साथ में कौन जुड़ा हुआ है, Br। ये सेम कंपाउंड बना दिया मैंने CH3। अब यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, हम लोग वहां पे क्या करते थे, पहले Br को बाहर निकालते थे, फिर OH को अटैक करते थे। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर removal of one nucleophile and addition of another nucleophile takes place simultaneously। तो अभी यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस simultaneously। what I said, I'm repeating once again, bond breaking and bond making मतलब कैसे हो गया, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है, घुस रहा है उसके अंदर। ठीक है, सो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ बैक साइड अटैक हो सकता है, ओनली बैक साइड अटैक। ठीक है, ये आपको पीछे से धक्का देगा। तो अभी यहाँ पे कैसा होता है देखो, इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे हम लोग। जस्ट सी दिस, ट्रांजिशन स्टेट मतलब हाईली अनस्टेबल स्टेट। अभी देखो, हाँ, OH, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्म होना चाह रहा है। यहाँ पर आ गया आपका H, ये दूसरा वाला H, ये आपका तीसरा वाला H, और यहाँ से डॉट डॉट Br का मतलब क्या है, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। आया समझ में? अब कार्बन का वैलेंसी देखो, 1 2 3 4 5 है ना। दिस इज कॉल्ड एज पेंटावैलेंट, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट which is highly unstable। ठीक है, and it is also called as penta coordinate carbon। समझा बच्चों? अभी कार्बन 5 5 लोगों को लेके नहीं रह सकता है। so what is happening, you are going to break your bond also, sorry, you are going to form your bond also, and you are going to break your bond also। so can I comment over here, bond breaking and making takes place simultaneously, yes or no? Bond breaking and making takes place simultaneously। एक साथ हो गया। अभी क्या होगा देखो, मुझे ये जो प्रोडक्ट आएगा ना बच्चों, आई विल गेट हियर 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट। देखो ध्यान से कैसे आ गया, मेरा पूरा प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा, उसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है पूरा चेंज हो गया, एंड आई एम गोइंग टू गेट हियर OH अटैच्ड हियर। इसको रिटेंशन कब बोलती मैं, अगर मेरा Br जहां पर था उधर पे ही OH भी आता, प्लस Br माइनस विल कम आउट। तो दिस इज कॉल्ड एज 100% इन्वर्जन, क्योंकि उसने उसको पीछे से धक्का मारा। ये देखो, Br इज माई थंब, इसको पीछे से अटैक किया तो पूरा उल्टा हो गया। ठीक है, सो OH विल कम ओवर हियर, सो दिस इज कॉल्ड एज 100% इन्वर्जन। समझा? अब यहाँ यस मैम। पर यस, अभी यहाँ पर मैं ऐसे बोलूं, अरे कोई भी फालतू सा KOH या NaOH कौन सा भी यूज करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ पर तो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेट लेना है, दोनों सबस्ट्रेट के ऊपर वो डिपेंड करता है। दैट इज नाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू? अभी देखो, substitution nucleophilic unimolecular, substitution nucleophilic bimolecular. This is two-step mechanism, this is one-step mechanism. In the first step, formation of carbocation takes place. In the second step, attack of nucleophile takes place. In this case, bond making and bond breaking takes place simultaneously, and only backside attack is possible. अब यहाँ पे क्या लिखोगे? Both the attacks are possible, backside as well as front side. Here only backside attack is possible. It is giving you 50% inversion, 50% retention. That is a racemic mixture. It gives you only 100% inversion. ठीक है, rate of the reaction depends only on one substrate. Rate of the reaction depends on both the substrate. हो गया, खत्म mechanism। समझाओ? SN1 SN2, is it very clear बच्चों? I hope you understood यस this। मैम। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ये मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। आप यहाँ पर बॉन्ड बता रहे हो, कौन कहाँ पे कैसा गया, कैसा चेंज हो गया, सो दैट कम्स अंडर स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, अभी लिखे हम लोग SN के बारे में।
एनी क्वेश्चंस बच्चों? अभी यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि व्हाई यू आर टेकिंग टर्शरी अल्काइल हैलाइड ओवर हियर, बिकॉज आई वांट कार्बोकैटायन, तो मैं सबसे स्टेबल वाला ही लूंगी ना, तो टर्शरी विल गिव मी द मोस्ट स्टेबल, दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन। व्हाई यू हैव टेकन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ओवर हियर, क्योंकि मुझे कार्बोकैटायन बनाना ही नहीं है, एक जगह से मैं बॉन्ड घुसा रही हूँ, दूसरी जगह से मैं बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ, तो उसका कुछ रोल ही नहीं है, तो मैंने प्राइमरी लिया तो भी चलेगा। ठीक है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट विच इज हाईली अनस्टेबल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज पेंटा कोऑर्डिनेट। और कोई भी आपका, दिस इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड एज अटैकिंग ग्रुप। समझा? Yes, ma'am. चलो अभी हेडिंग लिखो फटाफट सब लोग, फिर मैं ये पेज दिखाती हूँ, आप लोग कॉपी करो, ठीक है? राइट ऑन द हेडिंग SN reactions or mechanisms. SN reaction or mechanism. Write down point number 1. SN stands for substitution nucleophilic reaction. SN stands for substitution nucleophilic reaction. Miss, Yes, can you please repeat that point? I said SN stands for substitution nucleophilic. लिखा? Next, CX bond in alkyl halide, CX bond in alkyl halide undergoes CX bond in alkyl halide undergoes heterolytic fission, undergoes heterolytic fission and forms electrophilic center and forms electrophilic center. X minus, ऐसे ब्रैकेट में लिखो, X minus, that is halide ion, X minus, that is halide ion, is acting as leaving group, is acting as leaving group. ओके चलो अभी इसके बाद आप क्या लिखोगे? Miss, आपने SN क्या में क्या बोला? X minus is? X minus, that is halide group acting as halide ion acting as leaving group. देन ऐसे लिखो SN और उसके दो पार्ट्स बनाओ, SN1 SN2। ये सब मत लिखो, बाद में डिफरेंशिएशन में दे दूंगी आपको अच्छे से लिख के, ठीक है? SN1 SN2 मतलब SN मैकेनिज्म के कितने पार्ट्स है? SN1 SN2। हो गया? चलो अभी सब लोग चुपचाप से SN1 मैकेनिज्म कॉपी करो। दिख रहा है अच्छे से? हेलो, कैन यू सी इट यस प्रॉपर्ली मैम। बच्चों? हाँ ओके चलो कॉपी करो। हो जाएगा तो मुझे, यहाँ तक लिखो, हो जाएगा तो मुझे बोलो, फिर मैं नीचे करती हूँ कैमरा।
मिस थोड़ा ऊपर पकड़ो ना फोन। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, दिख रहा है? रुको, इधर पे क्लिप लगा देती हूँ तो उड़ेगा नहीं। हाँ मिस। हाँ लिखो, दिख रहा है बच्चों? एकदम अच्छे से लिखो, ये 4 मार्क्स का आंसर है, 4 मार्क्स का। कल 13th है क्या डेट? 12। आज 12th है ना? 13 है कल कल। आज 12 है। ओके ओके। मिस हाँ ये हम लोग ने SN1 एंड SN2 पार्ट किए, उसमें ही लिखना है ना हाँ हाँ, कि मीन्स ये ये पूरा सेपरेट हेडिंग आएगा ना प्रांजल, SN1 मैकेनिज्म। और बाद में SN2 लिखना है। हाँ, एक ही में लिखोगे, इसके ऊपर ही लिखोगे ओवरलैप करके। कैसा प्रश्न है ये? नहीं मिस, मैंने सोचा कि आप वो ये दे रहे हो, बॉक्स में दे रहे हो। नहीं नहीं, ये ऐसे ही लिखो जैसे लिखा है, एकदम बिल्कुल वैसे लिखो। बाद में उसका डिफरेंशिएशन लिखाऊंगी मैं कल। फटाफट लिखो रे, 5 मिनट बचा है। कितना रो रो के लिख रहे हो तुम लोग। यू हैव अनदर लेक्चर आल्सो ना। कितना रोते हैं ना तुम लोग। मिस स्क्रीन आपके क्लियर नहीं है। हाँ मिस। यस मिस। ब्लर है। हाँ क्लियर है, आई एम ऑन वाईफाई, क्लियर है मेरा नहीं प्रिंट। मिस, ब्लर आ रहा है। तो तेरे साइड से प्रॉब्लम है प्रांजल, बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है। मिस मैंने नहीं बोला था, अदिति ने बोला था। मिस मैं हाँ बोल ओके अदिति, सॉरी सॉरी। हाँ अदिति, इट इज क्लियर। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन लीव एंड रीजॉइन। शायद नेटवर्क इशू होगा थोड़ा। तो जितना होता है उतना लिखो। आई विल शो इट टू यू टुमारो आल्सो, ठीक है? तो कल कॉपी कर लेना जो बचा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे HDA चैप्टर का। व्हाट इज HDA नाउ? अभी मुझे पूछना नहीं कि व्हाट इज HDA। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स। चैप्टर का नाम है हेलोजन डेरिवेटिव, बट वो अल्केन्स और अरीन्स दोनों के बारे में है, राइट? सो HDA जो है, इन दिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस वन ओनली, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ये बोर्ड्स वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आता है। कितना इजी है देखो। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत आड़ा तड़ा करके दिया है, मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके दिया है आपको। मैम ठीक स्टीरियो है, केमिस्ट्री करना है। अभी मत लिखो, कल लिखो। अभी सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दो। टुमारो आई विल गिव यू टाइम, है ना? अभी होगा नहीं, आधा ओके अधूरा मैम। रह जाएगा। हाँ, टुमारो आई विल शो इट टू यू अगेन। ओनली जस्ट राइट डाउन टिल हियर, k is equals to this into this. Okay, don't write anything. And for this, you can use Done. different color pens also. Blue and black. Red नहीं है, red green सब नहीं, but you can use different colors so that while studying also you will feel good. Done miss. Done, everyone? I hope today's lecture is very, very clear to you all. हाँ मिस। Ashish, Raj, Yes, Aditi, ma'am. Apurva, Gomes, Gauri, Clear, ma'am. Niti, Nishil, तन्मय किधर चला गया? तन्मय, संजय, सिद्धेश, विघ्नेश। क्लियर मिस। Yes, ओके, ma'am. ठीक है? तो अभी तुम मिस लोग, हाँ पकाओ। एक मिनट पीछे का पेज दिखाओ। ए बाबा, ये लड़की का रोज का, ओ गॉड। मिस एक मिनिट दिखाओ। तुम्हाला कधीतरी ना वेडी वाटते, कधी 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 काय नेहमीच झाला। एकच मिनिट मिस। हाँ झालं। ओके, क्या पता क्या चेक करती है, रोज बोलती है पीछे का पेज दिखाओ। क्या पता क्या है बाबा, काहीतरी प्रॉब्लम है। चलो बच्चों, नाउ यू हैव 2-3 minutes, यू गो फ्रेशन अप एंड सिट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? ये स्टीरियो केमिस्ट्री कल लिखो, ओके? एंड टुमारो आल्सो सेम यस टाइमिंग मैम। है। मैं पेपर चेक करके देती हूँ, हाँ बाद में उसका 1-2 दिन में देती हूँ। चलो बाय बाय, टेक मिस केयर। मैंने एंड मेरा आई विल, पेपर आपको बाय भेजा मैम। है। हाँ हाँ ठीक है, मैं सोल्यूशन भेज दूंगी ग्रुप पे उसका सबका, ऑल 60 क्वेश्चंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो आपको समझेगा वेयर यू हैव डन योर मिस्टेक्स, ठीक है? पेपर भी भेज, पेपर तो है तुम्हारे पास ना। आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन सो यू कैन रेफर दैट। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो। बाय मिस, थैंक यू मिस। बाय Yes, मैम। वेलकम, वेलकम, बाय बाय।